Okay, today we are going to learn about the similarity of a right angle triangle. हम लोग पहले पढ़ चुके थे similarity criteria for triangles. That means we have studied about triple A similarity. Okay, first, second, triple A similarity, and third, we have studied about SAS similarity. Okay, it is also corresponding to a similarity. Okay, now we have studied earlier. Okay, टुडे हम लोग आज ये बात करेंगे कि इसे राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले हाइपोटेनस पर, तो उससे जो ट्रायंगल बनता है, दो ट्रायंगल जो बनते हैं, बोथ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो होता ही है, साथ ही साथ उस त्रिभुज के भी सिमिलर होते हैं. सो हियर इज थ्योरम. व्हाट इज थ्योरम? Theorem is if we draw a perpendicular, if we draw a perpendicular from right angle to the hypotenuse. If you draw perpendicular from right angle to the hypotenuse, the triangles thus formed are similar to each other and also similar to the triangle. Also similar to the triangles. Okay. What we have to prove? To prove. What we have to prove? Here is a right angle triangle. Here it is a right angle and triangle is ABC. Here we draw another perpendicular to this. AD is drawn perpendicular to the hypotenuse AC. We have to prove that triangle ABC is similar to triangle. यह triangle बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा. ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB, triangle ABC is similar to triangle BDC.
BDC and triangle ADB is similar to triangle BDC. Now proof. First of all, we prove this. Show in triangle ABC and in triangle ADB. What? Angle A is common. Angle A बराबर angle A, that is common. Angle B बराबर angle D, 90 degree. So by double A similarity criteria, what? Triangle ABC is similar to triangle ADB. Okay. Now we have to the second part. Again, in triangle ABC and triangle BDC, what? Angle B and angle D बराबर angle B बराबर angle D बराबर 90 degree, and we have BDC. This angle C is equal to angle C. Angle C बराबर angle C. Common. So by double A similarity, what? Triangle ABC is similar to triangle BDC. Now we have to prove both how small angles are similar. For this we have to prove that angle A बराबर angle C. So now what it is 90 degree, then this angle plus this angle is equal to 90 degree. Look at the tip of the pen. I am drawing this and this. Sum of this angle is equal to 90 degree. Angle A plus angle ABD बराबर 90 degree, and
एंगल बी बराबर एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी बराबर 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए बी डी plus angle CBD. So this is cancelled. Here implies angle A बराबर angle CBD. Now in triangle ADB and triangle BDC, angle A बराबर angle CBD, angle D बराबर angle D बराबर 90 डिग्री। So by similarity criteria, both triangles are similar. Triangle ADB is similar to triangle BDC. We have proved. Okay. Now we prove here another theorem. Okay. Here is another theorem. Another theorem is, सबसे पहले समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या है। कहता है कि यदि दो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये भी एक त्रिभुज है, फॉर इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, इक्विएंगुलर मीन्स corresponding angles are equal, this angle equal to this angle and this angle equals to this angle and this angle equals to this angle, then these are equiangular triangle. इक्विएंगुलर ट्रायंगल, जैसे कि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं व्हाट इज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल में जब किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से यदि सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, ओके, इट इज नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट, इट इज मिड पॉइंट, सपोज इट इज डी इज मिड पॉइंट in case of triangle ABC, in case of triangle ABC, and suppose it is PQR. What is going on here, my dear? If we draw perpendicular, sorry, if we draw a line, if we draw a line which from vertex which meet at midpoint of this side, then we called it as
आई डोंट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों बार बार आ जा रहा है। जब भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ये बीच में आकर के छिड़कानी शुरू कर देता है। तो मीडियन जानते हैं आप कि अगर सामने वाले शीर्ष को अगर किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो लाइन उस ट्रायंगल के लिए मीडियन कहलाती है। सिमिलरली तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो जाएंगे। ओके, वी आर इरेजिंग दिस। थ्योरम, व्हाट इज, क्या थ्योरम कहती है? थ्योरम ये कहती है कि फॉर एनी टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल, for any two equiangular triangles, the ratio of any two sides, okay, the ratio of corresponding medians. Here corresponding is not used. The ratio of medians is equal to the corresponding sides, is equal to the ratio of the corresponding sides. It is actually equal to the ratio of corresponding sides on which medians are drawn. Medians are drawn. Medians are drawn. What we have to prove? That means to prove we have taken two triangles, another triangle. Okay, we are triangle A, B, C and P, Q, R. If we draw a line which exactly meet midpoint of this, it is AD and it is PS. It is midpoint. D and S are midpoint on BC and QR respectively. तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है BC अपॉन QR ये बराबर होगा AD अपॉन PS। हमने कहा कि मीडियन जिस साइड पर
खींचे गए हों। तो ये एडी मेडियन है वो साइड बीसी के ऊपर खींचा गया है, या पीएस मेडियन है साइड क्यूआर के ऊपर खींचा गया है। तो जिस साइड के ऊपर खींचा गया है उन दोनों का रेशियो करस्पॉन्डिंग मेडियंस के रेशियो के बराबर होता है। चलिए हम इस बात को प्रूव करते हैं। तो now we start our proof. Now we change the color of the pen. So since triangles are equiangular, that means I think this color is not suitable for my writing. It is better one. Equiangular, that means angle A बराबर angle P, angle B बराबर angle Q and angle C बराबर angle R. Therefore, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर। Suppose we have first. Now in triangle ADB and okay. Now in triangle ADB and triangle PSQ. इस ट्रायंगल में क्या है? एंगल B बराबर एंगल Q समान कोनिक से, और एंड AB अपॉन PQ बराबर दिया हुआ है BC अपॉन QR के। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD अपॉन 2 टाइम QS। D and S are मिड पॉइंट। ये यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QS। ओके, देन इन दोनों, इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, क्या होगा? ये एंगल बराबर है और इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड की रेशियो बराबर है। तब हम याद करो SAS सिमिलरिटी, देन SAS, देन बाय SAS सिमिलरिटी। फिर से बीमारी शुरू हो गई तुम्हारी।
सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? इस सिमिलरिटी से क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा ए बी अपॉन पी क्यू। हम इन दोनों, अब इस बार मीडियंस को ले लेते हैं, ए डी अपॉन टी एस। इट इज आवर एम टू प्रूव। अगर नहीं समझ में आता है बार बार इस वीडियो को देखिए, और अगर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं भेजिए। ओके। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक और थ्योरम प्रूव करते हैं। ओके। इस बार हमने देखा कि जो जिस पर माध्यिका खींची जाती है उन दोनों साइड का रेशियो माध्यिका के रेशियो के बराबर होता है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे सामने वाले से तो उस परपेंडिकुलर का रेशियो जिस पर खींचा गया है उस साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो ये रहा थ्योरम। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर यानी हाइट the ratio of height of two equiangular triangle the ratio of height of two equiangular triangle is equal to the corresponding sides on which they are drawn. On which they are drawn. What we have to prove? We have to prove here we have two triangles. Okay. And we draw perpendicular from this vertex. Here perpendicular is not exactly drawn. It is perpendicular. It's perpendicular. It is triangle A, B, C and this triangle P, Q, R. Okay, it is D and it is S. तो हम लोग प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना होगा
कि इस परपेंडिकुलर के रेशियो जिस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है उन दोनों रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर ये बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस के। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो प्रूफ में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बोथ ट्रायंगल both triangles are equiangular. That means एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R. Correct? Then from triple A सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर PR सॉरी AC अपॉन PR। तो हमें सिर्फ इतनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये और इस ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, जरा देखिए तो एंगल D बराबर एंगल S बराबर 90 डिग्री, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल ओके, एंड एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल B बराबर एंगल Q। क्यों? क्योंकि इक्विएंगुलर ट्रायंगल है। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी criteria, double A similarity criteria, but both the triangles are similar. Triangle ADB is similar to triangle PSQ। जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स AB अपॉन PQ ये बराबर हो जाएगा AD अपॉन क्या PS के। और जरा देखिए तो AB अपॉन PQ किसके बराबर है, ये BC अपॉन QR के बराबर है, ये बराबर है BC अपॉन QR के। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली मिला क्या, BC अपॉन QR जो है वो AD अपॉन AS के बराबर है। राइट, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, if we go above, then here what we have proved AB upon
PQ is equal to AD upon PS. What exactly is this? AB upon PQ is equal to this BC upon QR. It is not exactly here proved. It is equal to BC upon QR. And this implies that BC upon QR बराबर AD upon PS. It is proved. You can understand easily. Not worry about these things. So हम लोग क्या देखे यहाँ पर दो केस देखे कि अगर मीडियन सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर मीडियन खींचा जाए, मीडियन क्या होता है, तो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल के लिए मीडियन कहलाती है। और हाइट क्या होता है, हाइट होता है किसी भी वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो लाइन हाइट होती है उस ट्रायंगल के लिए। तो हमने देखा कि हाइट, दो ट्रायंगल के हाइट का रेशियो जिस साइड के ऊपर हाइट खींची गई है उनके रेशियो के बराबर होता है, और मीडियन जिस साइड पर खींचे गए हैं उनका रेशियो उन साइड के रेशियो के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और है कि हमने देखा मीडियन परपेंडिकुलर है एंगल बाइसेक्टर। यदि किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो भी वो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो जिस साइड के ऊपर मिलाया गया है उस साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको भी प्रूफ ही कर लेते हैं, क्यों छोड़े, है कि नहीं। वी हैव डन ऑलमोस्ट। तो चलिए थ्योरम प्रूफ करते हैं। आई थिंक वी हैव टू चेंज आवर पेन कलर। नेक्स्ट थ्योरम, for any two equiangular triangle, for any two equiangular triangle, the ratio of corresponding angle bisector of an angle, the ratio of angle bisector, the ratio of angle bisector is equal to the ratio of angle bisector is equal to the ratio of angle bisector is equal to the corresponding side तो corresponding साइड का मतलब क्या होगा कि बाइसेक्टर, जो भी एंगल बाइसेक्टर है वो किस साइड के ऊपर मीट हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स, तो हमने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, यह है ट्रायंगल ए बी सी, यह है पी क्यू आर। अब हम एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, और इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं पी एस,
दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। AD and PS are angle by factor of angle A and angle P respectively. Okay, what we have to prove? तो हमें प्रूफ करना होगा कि AD अपॉन PS जो है वो चलिए हम इसको BC अपॉन QR के बराबर होगा। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विएंगुलर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और एंगल P बराबर एंगल C। Triangles are equiangular, so एंगल A बराबर एंगल P, एंगल V बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R। जब एंगल A बराबर एंगल P है तो हम एंगल A को लिख सकते हैं एंगल 2 टाइम्स, ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल A को 2 टाइम्स एंगल BAD टाइम्स एंगल BAD, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल QPS, टाइम्स एंगल QPS। ये इम्प्लाई करेगा एंगल BAD बराबर एंगल QPS। ओके, नाउ इन ट्रायंगल by AAA similarity criteria क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सॉरी पी क्यू आर। सिमिलर हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। नाउ इन ट्रायंगल हम लोग चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। दैट मीन्स ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू। क्या है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल क्यू पी एस, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, देन बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देन बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सॉरी ट्रायंगल ए
ADB is similar to triangle PSQ। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स AB अपॉन PQ ये बराबर हो जाएगा BC अपॉन QR के। और AB अपॉन PQ किसके बराबर है? सॉरी, क्योंकि देख AB बराबर PQ BC बराबर AB के बराबर है, तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखते, इरेज कर देता हूँ मैं। ये एग्जैक्टली इक्वल होगा AD अपॉन PS के। ठीक है, ये आ गई चीज हमारी। और AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। तो ये हो गया AD अपॉन PS के। ओके, इस प्रूव्ड। अब हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एक थ्योरम ये रह गया है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर लोड करूँगा, तो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वो थ्योरम बतानी है या नहीं बतानी है। तो थ्योरम ये है कि आप में से किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दो ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जो पेरीमीटर होता है वो कोई दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं इसको प्रूफ करूँ या ना करूँ, प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, so I am going to stop here today's class. Okay.